میں کیا کہوں اس شخص کے متعلق؟ آپ کی قیادت کس کے پاس جانے والی ہے؟ میں کیا کہوں اس شخص کے متعلق؟ میں کیا کہوں اس شخص کے متعلق؟ یہ تو کہہ رہا ہے سمندروں کی طرح، یہ تو وہ شخص ہے جس کا چلن ہے قلندروں کی طرح۔ محترم صحافی حضرات، کیمرہ مین، سندھ، پنجاب کے دیگے اور بلوچستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے غیور پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے کوئٹہ یوم پاکستان کے حوالے سے رنگ برنگی تقریبات سے سجا ہوا ہے۔ ہر گلی، ہر سڑک پاکستان کی جھنڈیوں سے روشن ہے، مختلف جگہوں پر تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن ہاکی گراؤنڈ کا یہ میدان سب سے بازی اس لیے لے گیا کہ یہاں پر پورا پاکستان موجود ہے، یہاں پر چاروں صوبوں سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، ہم عوام پاکستان کے کارکنان موجود ہیں۔ آپ سب کو میرا سلام۔ دوستو، آج 14 اگست کے حوالے سے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پروگرام انشاءاللہ کوئٹہ میں کریں گے تو ہمیں بہت ڈرایا گیا، ہمیں بہت دھمکایا گیا، ہمیں بم دھماکوں سے ڈرایا گیا، ہمیں کہا گیا یہاں لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ جمع غفیر دیکھ کر وہ لوگ جو بول رہے تھے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور میں نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر بلوچستان کے گراؤنڈ میں اگر ایک بندہ بھی ہوا تو میں بلوچستان میں جلسہ کروں گا جا کر۔ میرے دوستو، ہم تنگ آ چکے ہیں، ان چور لٹیرے اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے ہم یرغمال بن کر تنگ آ چکے ہیں۔ ہم نے اسی سال 23 مارچ کو اپنی یہ جماعت ہم عوام پاکستان کا اعلان کیا، اور اسی سال 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات کو ہم نے اپنی جماعت کو لاہور میں لانچ کیا، اور آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ہم عوام پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی جلدی یہ کامیابی عطا کی۔ اور بلوچستان کے لوگوں، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، اس تحریک کا آغاز جس کا میں ابھی تھوڑی دیر میں اعلان کروں گا کہ ہم کون سی تحریک شروع کرنے والے ہیں، یہاں کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ یقین جانیں کہ بلوچستان کے حالات دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ میں آج سے 3 سال پہلے یہاں پر آیا، سردار ناصر خان سے، ملک مرزا خان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان دوستوں سے کہا کہ میں ایک ترتیب دے رہا ہوں کہ میں ایک جماعت بناؤں گا اور میں ایک انقلاب کا آغاز کروں گا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس انقلاب کا آغاز بلوچستان سے کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور میں بلوچستان سے اور بلوچستان سے شروع ہونے والی یہ تحریک جس کا میں تھوڑی دیر میں اعلان کروں گا، انشاءاللہ پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی۔ میں سندھ کے دوستوں کا، پنجاب کے دوستوں کا، KPK کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو میری کال پر یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے سفر کی مصیبتیں برداشت کی، رات کو ان کو پریشانی بھی ہوئی، لیکن سلام ہے آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو کہ آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ یہی تبدیلی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کون سی تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں، اصل تبدیلی تو یہ ہوتی ہے جب عوام جاگتے ہیں، جب عوام کا حوصلہ جاگتا ہے تو یہ اصل تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی کے نام پر اس قوم کو جو دھوکہ دیا گیا، یہ قوم اس دھوکے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے دوستو، آج 73 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری آزادی ادھوری ہے، ہماری آزادی پوری نہیں ہے۔ ہم نے صرف انگریز سے نجات حاصل کی ہے، انگریز کے نظام سے نجات حاصل نہیں کی۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا سال 14 اگست انشاءاللہ اسی مقام پر کوئٹہ شہر میں انشاءاللہ ہم مکمل یوم آزادی منائیں گے۔ اس نظام سے
मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ आने का मकसद आपको कुछ चीजों के बारे में एतमाद में देना था। बलूचिस्तान के लोगों को एक पैगाम देने के लिए आना था कि हम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को, जिसमें आपका ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, MPA MNA वाला सिस्टम है, हम इसको मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्तरद करके इस्लामी सदारती निज़ाम के नफाज की जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। और ये जद्दोजहद हम दो सूरतों में करेंगे, एक अवामी और एक कानूनी। अवामी हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं और कानूनी इंशाअल्लाह हम सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए एक रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमने इस निज़ाम को अब इंशाल्लाह सांस नहीं देने देना। हमने अब इस निज़ाम को इतना तंग करना है अपने जलसों से, अपने जुलूसों से और अपनी रिट पिटीशन से कि ये निज़ाम अपनी मौत आप मार जाए। मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि आप चाहे किसी और पार्टी से भी आपका ताल्लुक है तो आप अपने लीडरों से ये बात कहें कि हमें ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं चाहिए। इस कौम का फायदा, इस कौम का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम के अंदर है। सदारती निज़ाम वो वाहिद निज़ाम है जिसमें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप बराह रास्त अपनी हुकूमत बनाते हो। हुकूमत और आपके दरमियान कोई चीज हाइल नहीं होती है। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में आप MNA MPA मुंतखब करते हो, फिर वो हुकूमत बुलाते हैं। आपके और हुकूमत के दरमियान आपके MPA और MNA हाइल होते हैं। जो फंड वहाँ से मिलते हैं वो आप तक नहीं पहुँचते हैं। सदारती निज़ाम के अंदर जो फंड ऊपर से रिलीज होगा वो आप तक पहुँचेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं उसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रेफरेंडम का मौका दिया जाए। अवाम से पूछा जाए कि अवाम क्या चाहते हैं, पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं या सदारती निज़ाम चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप सदारती निज़ाम चाहते हो? हाथ खड़े करके बताएं कि आप सदारती निज़ाम चाहते हो। ये है रेफरेंडम। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में रेफरेंडम के नतीजे में सदारती निज़ाम नहीं आएगा, वो देख लें कि अवाम तक जमा गफीर सदारती निज़ाम के हक में रेफरेंडम दे चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रजीज़ खान 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 कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज मैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर गैरतमंद बलोचों, गैरतमंद पख्तूनों की सरजमीन पर खड़े होकर इस बातिल निज़ाम को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 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 अवाम की कुव्वत से इस बातिल निज़ाम को हम शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह हम अवामी कुव्वत से इस्लामी सदारती निज़ाम लाएंगे। लोग पूछते हैं हमारे पीछे कौन है, और पूछने वालों से को हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे अवाम है, अवाम है और हमें अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल है। हमारे साथ अल्लाह की मदद और नुसरत है। यकीन जाने हम मुतवक्किल लोग हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल करके निकले हैं। हम ना किसी दुनियावी कुव्वत का सहारा मांगते हैं और ना हमें चाहिए। हमें सिर्फ अवाम की कुव्वत और अल्लाह का फजल चाहिए। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करके दिखाएंगे। इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बातिल निज़ाम के पुजारियों, मैं तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ। आज का ये जलसा बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद देखो कि बारिश बरसती कैसी है। इसके बाद इंशाअल्लाह आज मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह 6 सितंबर को हम कराची में जलसा करेंगे। कदम बढ़ाओ,
लजीज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बातिल निजाम के पुजारियों को मैं एक और पैगाम देता हूँ कि आज से तुम्हारी नींदें हराम होना शुरू, इसलिए आवाम जागे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब इस अवामी सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सदारती निजाम नाफिज कराने से। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तदा करता हूँ कि खुदारा इन लोगों के जज्बात को देखना है आप लोगों ने। हम सोमवार को आ रहे हैं आपके पास, आपने इन लोगों के जज्बात को देखना है, आपने हक का साथ देना है और आप इन मजलूम अवाम का साथ देना है कि जो 73 सालों से अपने हकूक के लिए बेचारे सिसक कर मर रहे हैं। अब अवाम की बारी है, अब अवाम के इक़्तिदार की बारी है और इंशाअल्लाह इस बारी को अब कोई नहीं रोक सकता। सब बारियां दे चुके हैं, अब इंशाअल्लाह अवाम की बारी है, हम अवाम की बारी है। मेरे दोस्तों, आज आप जितनी भी तादाद में हैं, याद रखें कि मैं तादाद पे यकीन बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं आपके जज्बे पे यकीन करता हूँ, क्योंकि जज्बा और नियत खालिस हो तो 313 को फतह होती है और हजारों को शिकस्त होती है। याद रखें, ग़ज़वा बदर को याद रखें, जब हक के साथ 313 थे और बातिल के साथ हजारों थे, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ हक को फतह इसलिए दी कि हक वालों का जज्बा सादिक था। आज आप लोगों का जज्बा सादिक है, बेशक आप तादाद में थोड़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह फतह आपका नसीब है, आपका मुक़द्दर है इंशाअल्लाह। इस्लामी सदारती निज़ाम, इस्लामी सदारती निज़ाम, इस्लामी सदारती निज़ाम। दोस्तों, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आज आप ये पैगाम लेकर जहाँ से आए, आप जब वापस जाएंगे अपने अपने इलाकों में, तो इस पैगाम को हर गली और हर मोहल्ले तक फैलाइए कि पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सदारती निज़ाम है। इस्लामी सदारती निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह हम खुशहाल होंगे, तरक्की और खुशहाली के हम नई मनाज़र देखेंगे। मेरे दोस्तों, एक दफ़ा आपने पार्लिमानी निज़ाम को 73 साल तक आजमाया है, आपको रोने और सिसकने के सिवा कुछ नहीं मिला, महरूमियों के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामी सदारती निज़ाम ही वो वाहिद निज़ाम है जो इंशाअल्लाह आपको जीने का हौसला देगा, जो आपकी नस्लों की उसके अंदर बका है, आपकी नस्लें आपको दुआएं देगी अगर आप ये काम कर गए तो। और इंशाअल्लाह ताला याद रखें, हम इस्लामी सदारती निज़ाम क्यों कहते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान की बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और इसकी बुनियादों में उन शहीदों का खून है। और आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि आज हमारे दरमियान वो भी मौजूद हैं कि जिनके बुजुर्गों का खून इस मुल्क की बुनियादों के अंदर शामिल है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे लोग, ताजर, मजदूर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह सब इस वक्त हम अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हमारी ये तहरीक आगे बढ़ेगी, दुश्मनों की नींदें तो हराम होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलेंगे। दोस्तों, बहुत दिल कर रहा था कि आपसे बहुत लंबी बातें करूं, लेकिन क्योंकि अब वक्त की कमी है और इंशाअल्लाह आपसे अगली मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी, जब इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर मैं फिर आपके पास आऊंगा इंशाअल्लाह।